Namaskar bachcho, I hope you all are well. So student, today we are going to start a practical session of chapter number 3. In that we are just executing some sequential program. Last day also we have seen some program, but today I am just introducing you some assignment and that calculation based programs. So student, today we are going to just take the input from user of their 5 subject marks and calculating their percentage. Okay, so first I am taking 5 subject marks. So for that, n1 is the variable in which I am asking to just give marks of 5 subject one by one. Enter your marks in Hindi. Okay, I'm just copying this statement 5 times for 5 different subject. Okay, and I'm changing the variable name just because of within a programming only one time a variable can max to max appear within a program. Okay, and I'm changing the subject like for Hindi, then English, Maths, IP and Physics. Let it be. These 5 subject के marks I need to calculate their sum and the average marks and get to know the percentage. Okay बच्चों, so for specific formation I am using a new line character as well, so it will give you the more readability of enhancement. ये लीजिए बच्चों, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट के मेरे मार्क्स आ गए। अब मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ बच्चों सम, जिसके अंदर मैं इन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड कर देता हूँ। सो फॉर दैट सम इज़ अ वेरिएबल इन विच आई एम एडिंग ऑल द मार्क्स ऑफ विच आई गॉट इन एग्जाम n1 plus n2 plus n3 n4, sorry n3 get repeated, so I need to remove it, and then 5. Okay, so n1 n2 n3 n4 and n5 gets added and their sum will be stored in a variable called sum. मैं इसको sorry मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ. लेट द वेरिएबल नेम इज s. ओके, एज यू नो दैट इन s वेरिएबल my sum of or total of all the marks gets stored. Now I need to just find the average. So for that I am just using a simple ag variable in which I am just calculating simple calculation that whatever the s means the total marks were there gets divided by 500 and gets multiplied by 100. ठीक है, ठीक है बच्चों. जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, परसेंटेज आप कैसे निकालोगे किसी का भी, मैं डायरेक्ट इसको परसेंटेज ही कर देता हूँ, PER परसेंटेज. जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो ऑब्वियसली आपने 100 में से मार्क्स एंटर करे थे, ठीक है. तो 100 में से मार्क्स एंटर करे थे, तो उसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उसको डिवाइड बाई 500 कर रहे हैं. तो पहले डिवाइड होना चाहिए, इसके लिए मैंने उसको पुट कर दिया ब्रैकेट के अंदर ताकि इसके ऊपर बॉड मास रूल अप्लाई हो जाए. एंड द आंसर विल फाइनली मल्टीप्लाइड बाय दैट 100. ठीक है, सो टू गेट द परसेंटेज. ओके बच्चों, सो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम. एंड एट लास्ट हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं कि प्रिंट योर marks, your total marks obtained is equal to मार्क्स किस में है बच्चों हमारे, यस एस वेरिएबल में. ठीक है, ठीक है, मैं इसमें आगे इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए एक मैसेज जोड़ देता हूँ, आउट ऑफ 500. ओके,
तो इस तरह से ये प्रॉपर मैसेज क्रिएट हो जाएगा। नाउ अब मुझे इसकी परसेंटेज भी प्रिंट करनी है, सो फॉर दैट आई एम टेकिंग एन अनदर वेरिएबल, ठीक है। और परसेंटेज इज इन विच वेरिएबल, PER परसेंटेज। सो योर परसेंटेज इज, ये लीजिए बच्चों, प्रोग्राम इज़ रेडी, ठीक है। हम इसको यहाँ पर एक प्रिंट में मैसेज भी दे देते हैं कि ताकि जो हमारे यूज़र हैं उनको पता पड़ जाए कि जो मार्क्स आपको एंटर कराने हैं, ठीक है, एंटर योर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आउट ऑफ 100, ओके। तो उससे क्या होगा, यूज़र पहले से ही जानता होगा कि he need to be enter the marks out of 100 only, okay. So I am pressing yes and executing it by pressing run and run module. So a simple message I am running again बच्चों on fresh window. Let's see. So it is already told that enter your 5 subject marks out of 100. So first marks is for Hindi. I got in Hindi 90. In English it is 80, 60, 90 and again 90, okay. ये देखिए बच्चों, total is 440 out of 500, and when you are just calculating 440 out of 500 you got 88%, okay. Your percentage is also being shown in decimals because percent में कोई भी decimal part of value हो सकती है बच्चों, okay. समझ में आया बच्चों ये प्रोग्राम? इट इज़ वेरी सिंपल, आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसको। एक छोटा सा और प्रोग्राम करते हैं बच्चों कि 2 नंबर्स को आपस में स्वैपिंग करवाते हैं, ओके। 2 नंबर्स की आपस में स्वैपिंग करवाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, एंटर 2 नंबर्स फॉर स्वैपिंग, ठीक है। 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, एंटर योर फर्स्ट नंबर देन एंटर योर सेकेंड नंबर, ठीक है बच्चों। अब देखो स्वैपिंग करने के लिए मैंने क्या करा है, फर्स्ट नंबर मैंने काय में ले लिया बच्चों N1 वेरिएबल में, और सेकंड नंबर मैंने काय में ले लिया N2 वेरिएबल में, ओके। अब बच्चों यहाँ पे स्वैपिंग करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अदर प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ पे कई सारे कोड्स यूज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको पता ही है बच्चों, N1 जो वेरिएबल है और N2 जो वेरिएबल है, इसमें हम एक साथ इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, और इसके बारे में हमारी कल भी बात हो चुकी थी। अगर मैं बच्चों यहाँ पे N2, N1 डाल दूँ तो आप सबको पता है बच्चों, गौर से देखिए मैंने क्या है, N1 में है मेरे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू, ओके। फर्स्ट वैल्यू मेरी काय में है N1 में, और एंटर योर सेकंड नंबर करने पे मेरी सेकंड वैल्यू काय में है बच्चों N2 में। अब मैंने क्या करा बच्चों, N2 की वैल्यू को किस में डाल दिया, N1 में, और N1 की वैल्यू को काय में डाल दिया N2 में, तो इट गेट रिप्लेस्ड ओवर, एम आई राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, ये प्रिंट आउट दे देता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। इन दोनों ही वेरिएबलों को सेपरेटली प्रिंट कर देते हैं कि प्रिंट, 1 सेकेंड, प्रिंट, सॉरी, प्रिंट। अब बताइए आपका जो फर्स्ट नंबर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया होगा, लेकिन फर्स्ट नंबर मैंने लिया काय में बच्चों N1 में ही ना, तो मैं इसको N1 दे देता हूँ और इधर N2, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। कंट्रोल एस F5, गौर से देखिए बच्चों, एंटर 2 नंबर्स फॉर स्वैपिंग, एंटर योर फर्स्ट नंबर, लेट आई एम गिविंग एंटर फर्स्ट नंबर इज 10, एंटर योर सेकेंड नंबर दैट इज 20। तो गौर से देखिए बच्चों, योर फर्स्ट नंबर इज 20 एंड योर सेकेंड नंबर इज 10, इट गॉट स्वैप्ड, ओके, एम आई राइट। ये स्वैपिंग हो गई। सो व्हाट इज स्वैपिंग, सिंपली चेंजिंग अ वेरिएबल नेम, वेरिएबल्स with the another variables value, okay।
and that variable will acquire the value of first variable. This is called swapping बच्चों. Okay, try these two practical problems. Thank you.